study chapter 15. Our chapter 15 name is Fundamental Rights and Duties. The Constitution of India has conferred some fundamental rights on Indian citizens to safeguard their individual liberty. इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कन्फर्ट किया गया कुछ फंडामेंटल राइट्स इंडियन सिटीजन्स के लिए टू सेफगार्ड उनकी इंडिविजुअल लाइबिलिटी के लिए. वायलेशन ऑफ दीज राइट्स रिजल्ट इन पनिशमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंडियन पैनल कोड. जो वायलेशन इन राइट्स का रिजल्ट निकल के आता है पनिशमेंट जो कि प्रिस्क्राइब की जाती है इंडियन पैनल कोड के द्वारा. हाउएवर द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन सस्पेंडेड व्हाइल a proclamation of emergency is made by the president of India. हालांकि जो फंडामेंटल राइट्स गारंटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा है और वो रिमेन सस्पेंडेड भी हो जाती है जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बनाई जाती है. जो इमरजेंसी ऑफ प्रोक्लेमेशन है वो इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा बनाई गई है. फंडामेंटल राइट्स The fundamental rights are the basic human rights of all citizens irrespective of race, place of birth, religious caste, creed और gender. जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो कि सभी सिटीजन्स के लिए हैं लाइक रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजियस कास्ट, क्रीड और जेंडर. द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट्स टू इंडियन सिटीजन्स एज फॉलोज. कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज है वो 6 फंडामेंटल राइट्स इंडियन सिटीजन्स के लिए 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि नीचे दे रखे हैं. The Constitution classifies the fundamental rights under 6 groups as follows. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लासीफाइड किया गया फंडामेंटल राइट्स के लिए 6 ग्रुप के अंदर दे रखा है. फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी. इट इज द प्रिंसिपल फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर राइट्स एंड गारंटीज द फॉलोइंग. ये प्रिंसिपल फाउंडेशन है सभी अदर राइट्स और गारंटीज के लिए कुछ इस तरीके से. फर्स्ट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ. ऑल पीपल शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ कंट्री. जो कंट्री के लॉज है उसके द्वारा सभी पीपल equally protected किए जाएंगे. Second is the state shall not discriminate any citizen and there shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any post under the state. जो state है वो discriminate नहीं कर सकता किसी भी citizen को और उसको equality provide करनी होगी उसकी opportunity के लिए सभी citizens के लिए in matter चाहे वो employment से relate कर रहा है या फिर appointment है किसी भी post पर state के अंदर. Third is this right abolishes untouchability and makes it a punishable offence. This right में abolishes भी हुआ हुआ untouchability और punishable offensive बनाई गई है. It also abolishes the titles which were earlier conferred upon people by the British government. इसमें abolishes भी किए गए हैं टाइल्स को जो कि पहले के टाइम पर कन्फर्म किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लोगों के ऊपर. Second is right to freedom. The right to freedom guarantees the following freedoms. Right to freedom guarantee है उसमें कुछ following freedoms हैं. According to this right, all citizens have the right to. इस right के according सभी citizens के पास अधिकार है, right है. First is freedom of speech and expression and to assembly peacefully without arms. इस freedom है speech में बोलने के लिए अपने expressions के लिए और peacefully शांति से अपने आप को assemble करने के लिए without arms. Next, freedom to form association or unions and to move freely throughout the territory of India. Freedom है association के form में फिर unions के form में वे freely move कर सकते हैं Indian territory के throughout. Next, freedom to decide and settle in any part of the territory of India. जो freedom है decide के लिए वो settle है किसी भी इंडिया के territory के part में. Next, freedom to practice any profession or to carry or any occupation, trade और business. जो freedom है वो practice है किसी भी profession की या फिर वो carry करें किसी भी occupation को, trade को या फिर business को. This right includes the right to education (RTE), which makes education a fundamental right to every child between the age of 6 and 14 years, and right to information (RTI), which gives every citizen the right to know how the government works, its role and its function. ये जो अधिकार है इसमें इंक्लूड है राइट टू एजुकेशन मीन्स RTE जो कि एजुकेशन बनाता है फंडामेंटल राइट सभी बच्चों के लिए 6 से लेकर 14 साल तक की एज के लिए. और ये राइट टू इन्फॉर्मेशन भी है RTI भी है जो कि सभी सिटीजन्स को देता है अधिकार कि वो जाने कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे वर्क करती है उसका रोल क्या है वो फंक्शन कैसे करती है. थर्ड इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लोशन. दिस राइट प्रोटेक्ट ऑल सिटीजन्स अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन विच इंक्लूड्स trafficking and slavery in human beings and abolition of employment of children below the age of 14 years job.
ये जो राइट है ये प्रोटेक्ट करते सभी सिटीजन को एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट। इसमें इंक्लूड है ट्रैफिकिंग और स्लेवरी इन ह्यूमन बींग्स, एबॉलिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन के लिए जो 14 साल के कम की एज के हैं उनके हजारियस जॉब के लिए। बैगरी फोर्स लेबर इज अ क्राइम एंड इज पनिशेबल बाय लॉ। जो बैगरी है, जो फोर्स लेबर है, मतलब जो फोर्स के द्वारा काम कर रहे हैं, लेबरिंग कर रहे हैं, ये भी क्राइम है और ये भी पनिशेबल किए जाते हैं लॉ के द्वारा। फोर्थ इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। दिस राइट प्रोवाइड्स रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। ये जो राइट है ये सभी रिलीजियस फ्रीडम को प्रोवाइड किया जाता है इंडिया के सभी सिटीजन को। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल बिफोर द स्टेट। सभी रिलीजन्स जो हैं वो स्टेट से पहले सभी के लिए इक्वल हैं। फर्स्ट, देयर शैल बी नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया। इंडिया के अंदर कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है। सेकंड, सिटीजन्स आर फ्री टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। सिटीजन है वो फ्री है प्रीच करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए किसी भी रिलीजन को अपने चॉइस से। थर्ड इज religious communities can establish and maintain their own institution for religious or charitable purposes। जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं वो इस्टेब्लिश की गई हैं और मेंटेन करते हैं अपने इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। फिफ्थ इज cultural and educational right. The constitution provides special measures to protect the rights of the minority। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है स्पेशल मेजर्स को और वो प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटीज राइट्स को। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, वेयर अ रिलीजियस कम्युनिटी इज इन माइनॉरिटी, द स्टेट शैल नॉट इम्पोज अपॉन इट एनी कल्चर अदर दैन द कम्युनिटीज ओन कल्चर। इस राइट के अकॉर्डिंग जब कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी वो माइनॉरिटी में है तो जो स्टेट है वो उसको इम्पोज नहीं करेगी किसी भी कल्चर के लिए दूसरी कम्युनिटी के कल्चर से। Such community shall have the right to establish and administer educational institution of its choice। इन सच कम्युनिटी सभी कम्युनिटीज के पास राइट अधिकार है अपने एडमिनिस्टर एजुकेशन को स्टैब्लिश करने के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अपने चॉइस से स्टैब्लिश करने के लिए। एंड शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव गवर्नमेंट्स एड, और वे एंटाइल्ड होते हैं गवर्नमेंट्स एड को रिसीव करने के लिए। सिक्स्थ इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। This right empowers citizens to move to a court of law in case of any denial of fundamental rights। इस राइट के अकॉर्डिंग जो एम्पावर्ड होती है सिटीजन्स के पास वो मूव कर सकते हैं कोर्ट तक, और इन केस कोई डैनियल फंडामेंटल राइट्स हो तो वो लॉ भी कर सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू इशू डायरेक्शन और ऑर्डर और राइट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, अधिकार होता है कि वो इशू डायरेक्शंस को बता सके, दे सके ऑर्डर, राइट्स या फिर इन्फॉर्मेंट्स किसी भी फंडामेंटल राइट्स के द्वारा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिक्लेयर्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने डिक्लेयर किया था इस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को जो कि हार्ट थे और सोल थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। Fundamental duties. The fundamental duties are the moral obligation of all citizens to help promote a spirit of patriotism and to uphold the unity of India। जो fundamental duties है वो moral obligation है सभी citizens के लिए जो help करते हैं, promote करते हैं इस spirit को और इस इंडिया की यूनिटी को होल्ड करके रखते हैं। फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल ड्यूटीज एवरी सिटीजन इज एक्सपेक्टेड। फंडामेंटल ड्यूटी के अकॉर्डिंग सभी सिटीजन एक्सपेक्टेड हैं। सेकंड इज टू रिस्पेक्ट द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, हमें अपने इंडिया के नेशनल सिंबल का रिस्पेक्ट करना चाहिए। थर्ड इज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग एक्ट करना चाहिए और अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। It is to protect and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए नोबल आइडियल्स को जो कि हमारे नेशनल स्ट्रगल जो फ्रीडम के नेशनल स्ट्रगल्स थे उनके द्वारा इंस्पायर किया गया था। फिफ्थ इज टू प्रोटेक्ट द सोवर्निटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड डिफेंड द कंट्री, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए सोवर्निटी को, यूनिटी को, इंटीग्रिटी को, इंडिया की, और हमें डिफेंड करना चाहिए अपनी कंट्री को। Next point, to promote the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, हमें इंडिया के अंदर सभी लोगों के बीच में कॉमन ब्रदरहुड स्प्रिट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए उसको। नेक्स्ट, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज एंड प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स एंड वाइल्ड लाइफ। जो वैल्यू है प्रिजर्व करना चाहिए अपने कल्चरल हेरिटेज को
और प्रोटेक्ट करना चाहिए नेचुरल एनवायरनमेंट को, जिसमें इंक्लूड है फॉरेस्ट, स्नेक्स एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, हमें डेवलप करना चाहिए साइंटिफिक टेम्पर को और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को। नेक्स्ट पॉइंट, टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना चाहिए और एब्जॉर्ब करना चाहिए वायलेंस को। नेक्स्ट पॉइंट, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड, हमें डिफेंड करना चाहिए कंट्री को और रेंडर नेशनल सर्विसेज को जब भी रिक्वायर्ड हो। नेक्स्ट पॉइंट, being a parent or guardian to provide opportunities for education to her child ward between the age of 6 and 14 years, यदि आप पेरेंट या गार्जियन हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए एजुकेशन की हिज या हर को, मतलब अपने चाइल्ड को या वार्ड को, और 6 से लेकर 14 की एज तक के बीच में। Directive principles of state policy. The directive principles of state policy are direction given to the state to guide the establishment of an economic and social democracy as proposed by the preamble. Directive principle है स्टेट पॉलिसी की, वो डायरेक्शंस हैं जो कि स्टेट द्वारा दी जाती है और वो गाइड करते हैं हमारे इस्टेब्लिशमेंट को, इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी को, और वो प्रपोज किए जाते हैं प्रीएम्बल के द्वारा। The idea of the directive principles was borrowed from the Constitution of आयरलैंड। जो आइडिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का वो बोरोड किया गया था आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। दीज प्रिंसिपल्स फोकस ऑन, जो प्रिंसिपल हैं किस चीज़ पर फोकस करते हैं, फर्स्ट इज इनकम इक्वालिटी एंड इंश्योर इंडिविजुअल डिग्निटी प्रोवाइडिंग इट्स पीपल अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनकम इक्वालिटी के लिए, और भी इंश्योर करते हैं इंडिविजुअल डिग्निटी, हर एक शान को प्रोवाइड करते हैं लोगों को डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए। सेकेंड इज रेजिंग लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ, वे लेवल को, न्यूट्रिशन के लेवल को रेज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और इम्प्रूविंग भी करते हैं पब्लिक हेल्थ को। थर्ड पॉइंट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ कंसंट्रेशन इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कम्युनिटी रिसोर्सेज में, वो कम्युनिटी में है और वो प्रिवेंट करते हैं वेल्थ को, कंसंट्रेशन करते हैं हैंड्स ऑफ अ फ्यू, कुछ के हाथ में। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज लाइक खादी, हैंडलूम एक्सेट्रा, जो प्रमोशन करते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज को, उसमें है इंक्लूड है खादी, हैंडलूम एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिवेंशन ऑफ सॉल्चर ऑफ यूजफुल कैटल दैट इज काउ, कार्ड्स एंड अदर मिल्क एंड जॉर्ज कैटल, ये प्रिवेंशन करते हैं सॉल्चर्स को, जो कि काफ़ी यूजफुल कैटल्स हैं जैसे कि काउ, कार्ड्स और अदर मिल्क और जॉर्ज कैटल। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, उनको वे प्रिजर्व भी करते हैं। Let's know first point, the Constitution of India has conferred some fundamental rights on Indian citizens to safeguard their individual liberty। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया की, वो कन्फर्म करते हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स को इंडियन सिटीजन्स में सेफ गार्ड के तरह से उनके इंडिविजुअल लाइबिलिटी के लिए। सेकेंड इज द फंडामेंटल ड्यूटीज रिमाइंड द सिटीजन्स दैट दे हैव सर्टेन ऑब्लिगेशंस टूवर्ड्स द कंट्री एंड सोसाइटी, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो रिमाइंड करवाते सिटीजन्स को कि उनके प्रति भी कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए उनके पास भी ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ अधिकार हैं। लास्ट थर्ड पॉइंट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी आर द डायरेक्शन गिवन टू द स्टेट in accordance with which the legislative and the executive powers of the state are to be exercised। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है वो डायरेक्शंस देते हैं स्टेट को इन अकॉर्डेंस, साथ में जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है स्टेट की वो भी एक्सरसाइज की जाती है। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।